High soil, sandy soil, clay soil, loamy soil. There are three type of soil. Huh? As you have a study, sandy soil, the soil which have large amount of sand, porous particles. Then the weathering of rock takes place. Uh, During weathering, some rock are remains in the bigger size that makes the sand. And if the rock is broken into a smaller pieces, very smaller and a smooth piece, that is make clay. And sorry, if the rock is broken into very small and smooth pieces, that is make clay. And the particles which are intermediate size, neither too much big nor too much small, then the particles form the silt. So according to size of the particles present in the soil, we divide the soil into three categories. Sandy soil, soil which having more amount of sand in it. This soil is well aerated because their particles are so big. There is large space present between the particles of the sand. So this sandy soil is well aerated. Aerated means हवा, जिसमें हवा ज्यादा filled हो, हाँ, हवा भरा हुआ, filled with air. When we put the water into the sandy soil, then what happen? Water will drip down. तुरंत पानी जो है उससे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. Sandy soil having poor poor efficiency for holding water, but it hold the more amount of water. So sandy soil need more frequent irrigation. If the plant is growing in the sandy soil, then we should require the more irrigation, frequent irrigation in the sandy soil. And it is better we select that type of plant for growing inside the sandy soil, which have a long root. Root can penetrate inside in the earth surface in deep and can absorb water. Or we have to irrigate the crop plant frequently. Next, clay soil. Clay soil having higher proportion of fine and smooth particles. There are very little space present between them. And so it having very less air or no air. But when we pour water in the clay soil, it can retain the water for long duration of time. So clay soil having more water holding capacity than the sandy soil. So which crop we should that plant requires more amount of stagnant water. जिस ऐसे प्लांट को जिसको कि ज्यादा वाटर चाहिए और वो वाटर कैसा स्टेइंग वाटर, जो रुका हुआ पानी हो, रुका हुआ वाटर हो, वैसे क्रॉप को ग्रो करेंगे किसमें, क्ले सॉइल में. And third type of the soil, that is the loamy soil. It is a mixture of sand, silt, and clay particles. All three particles are present in the loamy soil. And this soil is very good
because it has water holding capacity as well as air holding capacity. It can hold the water as well as hold air. So it is very good quality of the soil. And there is no problem for the water logging in the case of the loamy soil. And what happen in the clay soil? When we pour the water will hold by the soil. A clay soil hold the water for longer duration of time. So what will happen? Water logging problem will take place. So root can't respire. Root of the plant can't respire in the proper way. So there is a problem in the clay soil because it can hold water for longer duration of time. But loamy soil, it can hold water, but not for the longer duration of time. For some times, it can hold water and it has air holding capacity also. And so it's the most important soil for growing the all type of crops. And this loamy soil is formed by the what? When the flooding takes place, when the river brings the water, Sanvi, whatever sediment present in the river, that sediment is spread by the river in the surrounding area, and this forms the loamy soil, and it is very fertile soil. Huh? And now soil color. A soil color also gives indication of whatever things present in the soil, whatever minerals present in the soil, what amount of humus present in the soil. Soil color differs due to mineral contents of their parent rock and the amount of organic matter present in them. Red, yellow, brown colored soil related to the iron oxide in the soil. Red colored soil, yellow and brown colored soil presence of the iron oxide and the different type of iron oxide and the amount of iron oxide. Due to iron oxide, soil having red, yellow and brown color. So, and dark colored soil having the presence of particular mineral, certain mineral and type of organic humus present in the soil. That all of you have seen the dark colored soil, which have shown by the अपराजिता. कल अपराजिता दिखाई थी ना, अपने किचन गार्डन में दिखाई थी वो ब्लैक कलर सॉइल. तो वो सॉइल कैसा था, कैसा सॉइल था बोलो, लोमी सॉइल, और उसका कलर ब्लैक कलर था, somewhat black color. This was indicating the full of mineral and the full of humus. सभी कल देखे थे. Now अपराजिता गार्डन में फिर ला रही है, जरा देख लो, बड़ा अच्छा लग रहा है. लॉकडाउन में हम लोग गार्डन में घूम रहे हैं. मैम जैसे खेत में जाती हूँ मैम, सो करती हूँ. देख लो ये. मैम हम लोग घर पे बैठे गार्डन देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं, क्या बोले? बहुत मेहनत. हम लोग घर पे बैठे बैठे गार्डन देख रहे हैं. हाँ, और गार्डन देख रहे हैं और साथ साथ लोमी सॉइल को देख रहे हैं. अपराजिता का वो जो घर है ना, जैसा कि ये बताती है, अवस्थी घाट जो है ना, ये गंगा रिवर के किनारे है. और जब फ्लडिंग होता है तो गंगा रिवर जो है अपने सराउंडिंग एरिया में वो जो सेडिमेंट होता है उसको स्प्रिट कर देती है गंगा रिवर, और वो जो सेडिमेंट होता है बहुत फर्टाइल होता है. उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है ना. कैसे, मान लो कि फ्लड में जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो डेड हो गया, डिकम्पोज हो गया,
and that form the humus, है ना। और मैम उसमें मेरे घर के सामने लीटर बहुत ब्लैक सॉइल है मैम, बहुत ज्यादा वो ब्लैक है बहुत ज्यादा मैम मैम, तो पर अभी मैम सॉइल कीचड़ हो गया इसलिए हाँ बाहर नहीं एक जा सेकेंड, सकते। हाँ देख लो अपराजिता, देखो अपराजिता दिखा रही ब्लैक कलर स्वाइल, देखो। और देखने से ही देख लो, तुम लोग सभी देखो, देखने से ही वो सॉइल का वो कलर तो है ही, लग रहा है कि फुल ऑफ ह्यूमस है, उसमें ह्यूमस है ना। और वो एकदम मैम थोड़ा काम सा है। होगा वो सॉइल अगर थोड़ा सा भी किसी भी चीज से उसको इरोड करोगे तो वो आराम से बाहर आ जाएगा। देख लो, the leaf litter or root of the plants are present in the soil, this particular soil, देख लो, है ना। रूट है ना, प्लांट का रूट, ब्रोकन पीस ऑफ रूट, देख लो। यस It is, हाँ देखो, वेरी गुड। मैम एक तरह से तो ये भी सैंडी सॉइल हो गया मैम, क्योंकि जब मेरा घर बन रहा था तो मैम यहाँ पे बहुत बालू गिरा था। हाँ मैम लेकिन बालू के मैम ये लेकिन पूरा प्राजिता, यहाँ जो है तुम्हारा घर जो है ठीक है, लेकिन ये जो है कलर सैंडी सॉइल नहीं है, इसमें सैंड कहाँ है, सैंड नहीं है इसमें तो। ये सिल्ट सैंड और क्ले सभी का प्रोपोर्शन जो है ना इक्वल दिख रहा है। सैंडी सॉइल और भी गंगा रिवर के किनारे जाओगे ना तो वहां देखोगे कि वहां जो है एकदम मैम हाँ, तो कहीं कहीं रह सकता है, कहीं कहीं सैंड रह सकता है, लेकिन वो गंगा, किसी भी गंगा या किसी भी रिवर के किनारे जाओ तो वहां देखोगे केवल सैंड ही सैंड दिखाई देता है, क्योंकि वो माउंटेन एरिया से जो अपना लाती है, कोई भी जो रिवर जो है अपने वो रॉकेन ब्रोकन पीस ऑफ रॉक को, और वो ब्रोकन पीस आपस में भी कोलाइड करके टकरा करके वो सैंड में कन्वर्ट होता रहता है। ये तो लोमी सॉइल है अपराजिता, मैं हाँ ये लोमी सॉइल सॉइल है बेटा। और देखो इसमें ग्रीन ग्रासेस जो है ना, अब ये ग्रास क्या होगा, वो अप्रूट करो या नहीं, उसको उखाड़ो या नहीं उखाड़ो, और वो धीरे धीरे वही रहेगा। अगर वाटर उस पे आया तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, डेड हो जाएगा, और वो क्या बनाएगा, दैट विल मेक्स द ह्यूमस। हाँ वही जो है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और वो ह्यूमस को फॉर्म करेगा। और ह्यूमस का क्या है क्वालिटी, दिस मेक द सॉइल पोरस, it increase the water holding capacity of the soil as well as air holding capacity of the soil। वाटर और एयर का जो है ना ये राइट प्रोपोर्शन में होल्ड कर सकता है, ये सॉइल जो है ह्यूमस के प्रेजेंस होने से ये सॉइल का प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गया ना, इसका क्वालिटी बेटर हो गया। हाँ आस्क सानवी, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, हाँ आस्क इट। यस मैम। हाँ मैम जैसे कि मैम हमारे कंकड़ बाग वाले एरिया में जब बारिश होती है तो मैम वहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो मैम डज इट मीन दैट देयर इज क्ले सॉइल? clay soil and one more ये factor कि there is no means for drainage of the water, drainage system is not proper in the Kankarbaag Yes, ma'am. area and it is low area, Sanvi, it is lowland area, Yes ma'am. and that's why the water is Yes, not ma'am. drained out properly, and so there is water logging problem there. And you know Kankarbaag colony is the biggest colony of the Asia, एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी है। और जब सबसे बड़ा एशिया, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा कॉलोनी है कंकरबाग कॉलोनी, तो ये सबसे बड़ा कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी में क्या होना चाहिए था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। हाँ ये प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम Yes, नहीं ma'am. होने से अगर कोई भी वाटर है, कोई भी सॉइल है, ये
whether it is sandy soil and clay soil, loamy, it doesn't matter the what soil is present in that area. If the drainage system is not proper, then the water will not come out and water logging problem will create there. हाँ, वहाँ वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होगा अगर Okay, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। हम लोग का देखो Yes, ये कल्चर जो स्टार्ट हुआ था, हड़प्पा कल्चर, सोच लो कितना ओल्ड था, और उस Yes, कल्चर ma'am. में भी जो है Water प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन अब लोग बनाए हैं, अब Yes, घर ma'am. बना रहे हैं, अब कॉलोनी में घर बन रहा है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं। पहले घर बन रहा है और बाद में ड्रेनेज सिस्टम का उपाय सोचा जा रहा है। हाँ, इसके वजह से प्रॉब्लम है। और देख लो वहां जो है ना वो हम लोग का हड़प्पा संस्कृति, वो नियर अबाउट द पंजाब और राजस्थान उधर ही था ना। हाँ, किधर था हड़प्पा, किधर था? Yes, लाहौर ma'am. के पास। हाँ, मैम थोड़ा पार्ट उसका मैम पाकिस्तान इंडस में रिवर और मैम लाहौर थोड़ा के पार्ट पास उसका भी था। हाँ, लाहौर पाकिस्तान के में मैम पास। थोड़ा अच्छा इंडिया ठीक है, मान लिए लाहौर के पास उधर ही। एंड मैम इंडस रिवर पे। हाँ, इंडस रिवर पे, इंडस रिवर पे। तो एक बात बता देते हैं कि वहां देखो पंजाबी लोग आज भी कॉन्शियस है, अपना जो प्लानिंग किया है। वहां एक जगह है पंजाब में, मोहाली जगह है, मोहाली या मोहाली ही है नाम। वो जो है इतना वेल प्लान सिटी है, अभी मैंने कुछ समय पहले बना हुआ है, एकदम प्लानिंग करके वहां जो है कॉलोनी का फॉर्मेशन हुआ है। वाटर लॉगिंग नहीं है। और कुछ घर के बाद एक छोटा सा पार्क बच्चों को खेलने के लिए, फिर घर और फिर पार्क। बहुत सारे पार्क हैं वहाँ, छोटे बड़े सभी जो है जा करके और निकल करके पार्क में जा, और ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर है। तो वाटर लॉगिंग और कंकरबाग एरिया में तुम अभी देख रही हो सानवी, हम जब छोटे थे ना तो मेरा भी वहीं पर लिया गया था घर बनने के लिए जमीन, बहादुरपुर गुमटी के पास। तो इतना पानी रहता था ना, थोड़ा सा भी रेनिंग हुआ ना तो एकदम ये ड्रम वाला नाव लोग बनाता था और उस पर चढ़ करके उस एरिया में जाता था। हाँ, ड्रम वाला ड्रम था, 2-3 ड्रम इकट्ठा करके लोग बोट बनाता था, उस पर चढ़ के लोग जाता था। तो इसलिए मेरे बाबूजी वहां का जमीन जो है बेच दिए। अब तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत एक कम बार हो गया। बताया था ना। हाँ, तो ये ड्रेनेज मैम आपने एक बार बताया था कि मैम ये जो ब्लैक कलर का हाँ सवाल, हाँ बोलो अपराजिता। मैम उसकी आवाज कट जा रही है। कट आवाज रही है, कट जा बाहर रही है है। ना। मैम जो ब्लैक कलर का सॉइल, हाँ यस मैम, ये मैम फर्टाइल जब तब होता है जब ये इस साइड पे ये प्लांट ग्रो करते हैं। मैम मेरा इस सॉइल पे चिली प्लांट ग्रो। हाँ, देखो किसी भी ये फर्टाइल एरिया जो है ना, और इसमें क्या होना चाहिए फर्टिलिटी के लिए, ये भी अगर सॉइल फर्टाइल भी है, अगर वहां उस एरिया में अगर सनलाइट नहीं आ रहा है, सनलाइट का कम है ना, तो फिर फर्टिलिटी कम हो जाएगा। तो देखो सानवी, सॉइल तो है, सॉइल में सब कुछ है, मान लो ह्यूमस है, क्ले पार्टिकल, सैंड, सिल्ट, सब कुछ है, right proportion, whatever mineral required for the plant also present there. And if that area is not getting the sufficient amount of light, then the productivity of the plant will continue होगा? नो मैम। नहीं होगा No, तब ma'am. हम उसको नहीं कह सकते हैं कि सॉइल जो है इनफर्टाइल है। और ऐसा हुआ सानवी, हाँ ऐसा एक्सपेरिमेंट देखो, ये एकदम जरूर घर के आसपास जो हो रहा है साइंस पढ़ने के लिए, उस चीज पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की बात है कि अगर जिस खेत में, जिस फील्ड में अच्छा से क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा था और उसके चारों तरफ घर बन गए, तो वहां जो है अगर वो सनलाइट प्रॉपर नहीं आने लगा तो फिर वही लैंड जो है
एग्रीकल्चरल लैंड नहीं रह जाएगा, फिर उसमें जो है ना प्लांट का ग्रोथ मैम जब मैं नहीं होगा। हाँ बोलो मैम जब मैं बहुत छोटी थी तो मैम यहाँ पूरा जो मैम यहाँ से लेके वहां तक पूरा खेत है मैम, वो पूरा जगह मैम पूरा गोभी पूरा फूल सब्जी से भरा हुआ था मैम। यहाँ का सॉइल बहुत फर्टाइल था। हाँ अभी भी हो सकता है, अभी लाइट अगर आ रहा है तो अभी भी हो सकता है, होगा। अगर लाइट का ये है Yes, ma'am. लाइट, हाँ अभी भी होगा। तुम अपराजिता तुम लगाओ ना मम्मी के साथ मिल करके तरह तरह का हाइब्रिड, और उसका ग्रोथ देखो कैसे वो उसका ग्रोथ हो रहा है। हाँ ठीक है, Yes. अब चले। हाँ यस मैम। मैम ये भिंडी की बात है मैम, ये सब मैंने लगाया है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही लगा लगा करके देखो। साइंटिस्ट एक दिन में थोड़ी आदमी बनता है। ओनियन का प्लांट है। हाँ ये वो उसका एलोवेरा लग रहा है, एलोवेरा है। हाँ नो ओनियन है क्या है? मैम, ओनियन। ओ ओनियन लगाई है, ओनियन देखो कितना अच्छा, ओनियन का लीफ देखो। और वो जो हम लोग खाते हैं ओनियन ना, वो भी लीफ ही खाते हैं, स्टेम नहीं खाते, रूट नहीं खाते हैं। क्या यस खाते हैं? मैम। लीफ मैम खाते क्योंकि हैं। मैम वो लीफ की तरह होता है। हाँ अब वो लीफ ही होता है, लीफ का बेस जो है ना मैम वो फ्लेशी हो जाता है, अंडरग्राउंड लीफ फ्लेशी। होता है। मैम वो अंडरग्राउंड लीफ होता है। हाँ मैम मैं वो आपको फ्लेशी हो जाता है, वही लीफ ही खाते तो हैं। मैम रूट उसका कहाँ होता है? रूट तो रूट दिखता है, ओनियन का तो रूट यस मैम, दिखता है। ऊपर में हल्का हल्का यस बाल मैम टाइप वो रहता है। नीचे से रहता है। हाँ और स्टेम एकदम छोटा सा पार्ट रहता है, 6 में तुम लोग सबको बताए हैं, कट करके भी ओनियन दिखाए हैं, भूल जाते हो। हाँ ठीक, वेरी गुड अपराजिता। अब चलो आओ सॉइल टेक्सचर पढ़ा जाए। यस मैम हाँ ये चलो चलो आओ। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सपेरिमेंट के साथ साथ क्लास हो रहा हम लोग का। और ये मेज जरा सा देखो सभी, ये जो मेज देखो दिखाओ अपराजिता, इसको फोकस करो, यही होगा स्लो थोड़ा चलेगा। चलो ये देखो मेज, ये देख लो, ये जो है ना मेज का स्टेमेन इतना निकला हुआ है, ये जो निकला हुआ है जो स्टेमेन? हेयर जैसा, वो स्टेमेन है। यस और मैम। रिसीविंग मैम sorry मेल sorry sorry मैम मेल। स्टेमेन नहीं, स्टिग्मा, स्टिग्मा, इट वाज स्लिप ऑफ टंग, स्टिग्मा है फॉर रिसीविंग पॉलन ग्रेन। वो स्टिग्मा बाहर निकला हुआ है, और वो पॉलन ग्रेन रिसीव करके वो फर्टिलाइज करेगा, और तब उसमें जो है हम लोग जो खाते हैं मेज भुट्टा, वो उसमें ग्रोथ करता है। भुट्टा जो खाते हैं ना वो मैच्योर ओवरी। यस मैम। मैम अगर हम लोग इसी तरह से मैम बिना उसको तोड़े उसका ऊपर वाला लीफ छील देंगे तो मैम क्या उसमें मैम भुट्टा ग्रो करेगा? छील देंगे तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? और इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस और होना चाहिए कि वो जो है ना ये स्टूल ही ना करता है, उसमें वो ग्रेन में क्या करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड इज स्टोर देयर ना। हाँ यस मैम। this plant make the food more than the requirement by the plant, and extra amount of food is stored inside the grain. तो मैम हाँ मैम अगर केवल स्टिग्मा काट दे मैम, उसका लीफ छोड़ दें तब मैम? स्टिग्मा काट दे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब बताते हैं सानवी, देखो हमारा भी जैसे इसका घर है इस तरफ ना, गंगा जी के इस तरफ घर है, तो मेरा भी घर ये गंगा रिवर के उस तरफ मेरा घर है दियारे में। और वहां जो है ना वो जो मेज का जो ये हो जाता है, तो लोग दूसरे मेज को जिसमें केवल मेल फ्लावर एग्जिस्ट करता है उसको ब्रेक करके लोग हटा देता है, जानवर को दे देता है, उसको अप्रूट करके फील्ड से हटा देता है, कुछ समय तक रखता है लेकिन बाद में अप्रूट करके, क्योंकि उसको रहने से कुछ फायदा नहीं जिसमें मेल फ्लावर रहेगा, क्योंकि उसके पास तो केवल पॉलन ग्रेन होगा। हाँ यस मैम।
जैसे अपराजिता का किचन गार्डन है वैसा ही मेरा भी किचन गार्डन था। चलो अपराजिता, कम ऑन, सॉइल टेक्सचर। मैम स्ट्रक्चर। If you have played with the soil, have you seen कि soil, मैम बहुत sandy आवाज soil, आ रहा है किससे आवाज आ रहा है? मैम अपराजिता के माइक से। अच्छा, वो अपने जगह पे वापस आ गई इसलिए शायद आ रहा है। एक सेकेंड, अपराजिता को म्यूट कर दे रहे हैं, वो आएगी फिर। हाँ ठीक, ठीक है बेटा। If you have played at your childhood, have you seen कि ये sandy soil stick with each other? हाँ? यस मैम। No, for very मैम short कभी-कभी duration हो of जाता time. You have made the house in the sandy soil, putting the food inside the it. But for the मैम खेला था मैम, मैम चिपका नहीं है कभी। मैम चिपका कभी पाउडर नहीं टाइप है। रहता था। हाँ, पैर रख करके उस पे घर बनाते हुए हम देखे हैं बच्चों को, हम भी बनाए हैं। और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है, बस वो पैर रखा, जितना फुट रखा, फिर वापस कर लो, उतना केव लाइक स्ट्रक्चर बन गया। वही बच्चों के लिए घर है। लेकिन बचपन में जब वो कुछ कुछ बनाते हो तुम लोग, अब तो नहीं बनाते हैं, बच्चे घर में बंद रहते हैं। हाँ, हम लोग बनाते थे घरौंधा और कुछ कुछ बनाते थे। हम लोग के स्कूल में भी हैंड से बना हुआ, जैसे अब पंजाब के अच्छे अच्छे स्कूल में अब आ गया है कि हैंड से, क्ले से बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है और बच्चे बनाए। और धीरे धीरे हम लोग यहाँ भी आएगा वो प्रोजेक्ट का, क्योंकि वो उससे जो है माइंड का रिफ्रेशमेंट होता है। तो अब जब क्ले से क्या करते हैं, क्ले देते हैं बच्चों को बनाने के लिए। मैम कौन सा क्ले? सॉइल वाला? कौन सा क्ले देते हैं? दैट हैविंग द क्ले इन मोर अमाउंट। सैंड नहीं देते हैं कुछ खेल बनाने के लिए या फिर कुछ भी बनाने के लिए। पॉट जो है, पॉट मेकर वाला जो है, कभी चांस मिले तो जाओ देखो उसके पास कौन सा सॉइल यूज करता है, क्लेई सॉइल। हाँ, वो यूज करता है कौन सा सॉइल, क्लेई मैम सॉइल। वो स्टिक हो जाता है। हाँ, soil। क्योंकि स्टिक हो जाता है। हाँ, और ये गांव में जाओ कभी, चाहे देखो, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, ये मड का हट बनाते हैं, तो वो लोग भी क्ले सॉइल यूज करते हैं फॉर मेकिंग द हट। हट के ऊपर वो जो कोटिंग करते हैं ना, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोटिंग करते हैं। वो किसका, बैम्बू का वो सरफेस होता है वॉल, और उसके ऊपर जो है मड का कोटिंग करते हैं। किस लिए मड का कोटिंग करते हैं, कौन बताएगा? मैम ताकि वो मजबूत हो जाए मैम, मैम और ताकि उसमें एकदम मैम अच्छे से ज्यादा स्टिक गर्मी हो ना जाए। लगे मजबूत हो जाए बस। मैम, और गर्मी नहीं लगने के लिए मैम, हाँ, वो हीट कूल चैप्टर रखता है। पढ़ चुके हो। हाँ, मड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो उस लोग जो है वॉल पे मड अप्लाई करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग देयर सेल्फ फॉर द टू मच हीट। So they use the clay soil, not sandy soil and loamy soil. So what properties present in the clay soil? Clay particles are stick with each other very easily. They having cohesion power, a property due to which particles are stick to each other. This
property is known as cohesion. उसको क्या कहते हैं? कोहेसन. कहाँ कहाँ कोहेसन है? मिट्टी का कोहेसन तो तुम लोग नहीं देखे होगे. घर में देखो, किचन में कहाँ कोहेसन देखते हो? किचन में देखते हो मैम क्या? आटे में. हाँ, मैम आटे में. वेरी गुड. आटे में देखते हो कोहेसन. हाँ, उसमें जब वाटर मिक्स करते हैं तो हाउ द पार्टिकल्स ऑफ द wheat flour stick with each other. Flour having cohesion property. So any particle which stick with each other having cohesion property. Sticking of the particle with each other is known as cohesion. And plasticity. Plasticity is the property that enables the moist soil to change its shape by application of the force. Even the force is withdrawn from the soil. अब earthen pot maker मैम वाले को, इसीलिए हाँ, earthen pot maker वाला क्या करता है कि वो clay soil यूज करता है for making the pot, है ना? Earthen pot maker Yes, ma'am. use clay soil for making the pot, and he put the clay on the wheel, and he applied force for running the wheel. When the wheel is run, he apply force to the clay for giving to the shape and different shape, like the earthen pot, like the plate like a structure, and the making the toy. Different structure is given by the earthen pot maker to the clay soil. When the force is applied, after withdrawn the hand, force is withdrawn, the shape will remains in the same shape. हाँ, Yes, ma'am. जैसा वो शेप देता है. अर्थन लैंप भी बना देता है तुरंत ऐसे ट्विस्ट करके, और वह अर्थन लैंप, और वो क्या है, फिर शेप डिफॉर्म होता है नहीं, फिर वही शेप में वो रह जाता है. तो ये प्रॉपर्टी क्या है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो बेटा. मैम ब्रिक्स कौन से सॉइल से बनती हैं? क्या मैम ब्रिक्स तो क्ले सॉइल से बनती मैम हाँ. ब्रिक्स, हाँ, ब्रिक्स तो बनता है क्ले नहीं, उसके लिए कोई भी सॉइल यूज कर लेता है. लो लैंड एरिया वाला कोई भी ऐसे क्ले सॉइल. मैम, लेकिन सैंडी सॉइल तो यूज नहीं हो सकता. हाँ, सैंडी सॉइल बिल्कुल नहीं, सैंडी सॉइल बिल्कुल नहीं, क्योंकि सैंडी सॉइल जो है ना स्टिक नहीं करेगा. और क्ले सॉइल गंगा रिवर के किनारे बनता है, तो देखो गंगा रिवर के एकदम किनारे नहीं बनता, वहां बनता है जहाँ क्ले सॉइल होता है. अभी जाओ ना गंगा रिवर, लॉकडाउन ब्रेक होने दो अच्छे से कंप्लीट, कोरोना को जाने दो, और देखने जाना कि गंगा रिवर के किनारे जो है ना ब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है. ब्रिक्स जो है वो से बनता है, तो वो क्ले सॉइल, मोस्टली वो क्ले सॉइल यूज करता है. जहाँ कहीं भी क्ले सॉइल है ना, वही वो लगाता है, फर्नेस लगाता है, ब्रिक फर्नेस, और फिर उसको. मैम हाँ बोलो. मैम जैसे सैंडी सॉइल में कोहेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो हाँ. फिर मैम उसको यूज किया जाता है कि ताकि क्ले सॉइल मोल्ड से चिपके ना. हाँ, चिपके नहीं, इसलिए सैंड भी यूज करते हैं. मैम गंगा रिवर के पास मोल्ड के ऊपर मैम सैंड लगा देते एक हैं. साथ मत बोलो. हाँ बोलो, एक एक करके. हाँ बोलो. मैम गंगा रिवर के पास कुछ सॉइल मिलता है मैम, जो पानी के कारण एक्सेस गीला हो जाता है मैम, वो लेकिन उसमें वो जब जब पानी लीक करता है तब वो क्ले टाइप का सॉइल बन जाता है, और मैम वही सॉइल यूज होता है ब्रिक्स बनाने में. हाँ, ब्रिक्स बनाने में वही क्ले सॉइल ही यूज करते हैं, और उसमें मिनरल भी और होता है मैम ना. ब्रिक्स के मोल्ड पर, हाँ, उसमें मैम मिनरल ब्रिक्स भी. के मोल्ड पर सैंडी लगा दिया जाता है. क्या बेटा, बोलो जल्दी से. हाँ फिर से बोलो. मैम ब्रिक्स के मोल्ड पे सैंड लगा दिया जाता है ताकि वो क्ले चिपके सॉइल नहीं. मोल्ड में स्टिक ना करे. हाँ, वो चिपके नहीं, सैंड लगा करके, और उसके अंदर जो फ्रेम होता है उसमें क्ले सॉइल फिल्ड करता है, और फिर उसको इन्वर्ट करके रख देता है ताकि चिपके नहीं.
हाँ, और कोहेशन पावर कहाँ है, किसमें है बोलो। कोहेशन याद ही नहीं रहता बच्चे को, जबकि वो, मैम हाँ बोलो। मैम क्या पूछी मैम? कोहेशन, कोहेशन हम लोग को मैम आर्टिफिशियल क्ले, हाँ, मैम आर्टिफिशियल क्ले। आर्टिफिशियल, मैम मैम सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स, और बताओ, और मैम मैम किचन में आटो में मिलता है। आटा में, वो तो है। ये मैम देखो, किचन में आटा, मेरे बेसन, हाथ सूजी। में, मेरे हाथ में क्या है, मैम वाटर। मैम वाटर। वो हम क्या गम लेकर के वाटर को चिपकाए हैं? नो मैम। वाटर में